Our next participant is Aruni Verma, English. A Western admirer once described Swami Vivekananda being young in years and eternal in wisdom. If you accept this statement at its face value, it establishes the relevance of Swami Vivekananda's philosophy today. Namaskar, esteemed judges, revered Maharaj, and all the listeners present here. I, Aruni Verma, will now speak about Swami Vivekananda's ideas on nation building. If there is any land on this earth that can lay claim to be the blessed Punya Bhumi, the land where humanity has attained its highest towards gentleness, generosity, purity, kindness, calmness, but above all, the land of introspection and spirituality. It is India. A glorious destiny, my brethren, for as far back as the days of the Upanishads, we have thrown the challenge to the world. Na prajaya, na dhanena, tyage naike amritatva manushaha. Not by progeny, not by wealth, but by renunciation alone, immortality is reached. This is the theme of the Indian life work, the reason of our very existence being the spiritualization of the human race. And I challenge anybody to show one single period of a lifetime when India was lacking in spiritual giants capable of moving the world. Her influence has always fallen upon this world like that of a gentle dew, unheard and scarcely marked, yet bringing into bloom the fairest flowers of the earth. Swami Vivekananda stated, the chief cause of India's ruin has been the monopolizing of the whole education and intelligence of the land by dint of pride and royal authority among a handful of men. The whole difference between East and the West is that, contrary to theirs, education here is general. It penetrates into the masses. Swami Vivekananda exclaimed, respect the great men of your country. Worship them. Those great souled ones who have realized the eternal truth are to be presented before the world as the ideals to be followed. Spread far and wide the worship of Sri Krishna, roaring our Gita out in the voice of a lion. Know your past. Out of the past is built the future. Look back as far as you can. Drink deep of the eternal fountains that are behind. Then look forward. March forward. Recall that our ancestors were great people. We must learn the blood that courses in our veins. We must build an India yet greater than what she has ever been. Thank you. Thank you, Aruni Verma. The next participant is Purba Mukherjee. नमस्कार समस्त विचारक मंडली, मित्रगण एवं गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज मेरे वाक का विषय है स्वामी विवेकानंद का युवाओं को संदेश। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे पार कर जाना। आज भी स्वामी जी के विचार, कर्म युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, वह आगे भी बने रहेंगे एवं युवाओं को ऊर्जा देते रहेंगे। ये तो स्वामी जी भी मानते थे कि यदि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान की जाए तो वे देश के विकास को एक नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। आज का युवा जन्म बड़े ही निराशाओं से भरा हुआ है। ऐसे में स्वामी जी के विचार ही है जो उन्हें कर्म करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। स्वामी जी के विचार एक गुरु की भांति, एक पथ प्रदर्शक की भांति सदैव हमारे साथ रहते हैं। स्वामी जी ने युवाओं को संबोधन करते हुए कहा है कि मेरी समस्त भावी आशा उन युवकों में स्थिर है जो आशावादी हो, जो चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो एवं लोक कल्याण हेतु अपना सर्वस्व त्याग कर सके, जो मेरे विचारों को क्रियान्वित करने के लिए अपने लिए तथा अपने देश के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर सके। अन्यथा साधारण श्रेणी के युवक तो झुंड के झुंड आते हैं और आते ही रहेंगे, किंतु उनके मुख निस्तेज है, उनके हृदय कर्मशीलता से शून्य है। यदि मुझे नचिकेता की श्रद्धा से संपूर्ण 10 से 12 युवक भी मिल जाए तो मैं इस देश के विचार, कर्म को एक नई दिशा की ओर मोड़ सकता हूँ। स्वामी जी ने स्वावलंबी बनते हुए कहने के लिए कहा है कि तुम पुराने ऋषियों के मत सीखने तक ही सीमित मत रहो। वे ऋषि तो जा चुके हैं, उनके साथ उनके मत भी जा चुके हैं। तुम्हें तो स्वयं ऋषि बनना होगा। तुम भी उसी प्रकार मनुष्य हो जिस प्रकार अब तक उत्पन्न हुए सभी महापुरुष
एवं की अवतार भी मनुष्य थे। केवल ग्रंथ पाठ से ही क्या होगा, केवल ध्यान धरना से भी क्या होगा, तंत्र मंत्र भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। अतः तुम्हें स्वयं अपने पैरों पर ही खड़े होना होगा। स्वामी जी ने अथक प्रयास करते रहने के लिए बड़े ही सरल भाषा में ये कहा है कि तुम सदैव शौर्य से संपन्न रहो, आगे बढ़ो, कमर कसो, तुम्हारे सामने शत्रु खड़ा है, ये मोह माया की क्रूर सेना। ये सत्य है कि महान सफलताओं के मार्ग में नाना प्रकार की बाधाओं से भरे हुए हैं, किंतु फिर भी तुम अथक चेष्टा करना मत छोड़ो। स्वामी जी ने सबको स्वयं को समझने के लिए ये कहा है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को समझो और दूसरे प्रत्येक को भी यही सिखाओ। अपने अंदर सो रही सुप्त आत्मा को जगाओ, फिर देखो वे कैसे जागती है। एक बार तुम्हारे अंदर सो रही ये सुप्त आत्मा जागकर कर्म क्षेत्र में उतरती है कि तुम्हारे पास प्रभुता, कीर्ति, सुचिता, ऋजुता और जो कुछ भी श्रेष्ठ गुण है वे अपने आप ही चले आएंगे। अंत में स्वामी जी द्वारा किए गए संबोधन के साथ मैं अपनी वाक को समाप्ति पर लाते हुए स्वामी जी की वाणी से कुछ वाक्य कहती हूँ कि मरते दम तक कार्य करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं चला जाऊंगा तब मेरी आत्मा तुम्हारे साथ कार्य करती रहेगी। धन, नाम, यश ये तो केवल 2 ही दिन तक सीमित है। अथक चेष्टा करो। तुम संसार की कीट की भांति मरने की अपेक्षा तुम कार्य क्षेत्र में सत्य का प्रचार करते हुए मर जाना ही कहीं अधिक श्रेष्ठ है, लाख गुना अधिक श्रेष्ठ है। आगे बढ़ो। धन्यवाद। थैंक यू पूर्वा। जो भी प्रतिभागी अपना उद्बोधन दें वो सबसे पहले बता दें कि वो किस विषय पर अपना उद्बोधन दे रहे हैं। अभी मैं आमंत्रित करता हूं सौरभ परमार को। A very good morning, prestigious saints, honorable guests, and respective representative of various education institutes, dignified minds and future of India, all the excellencies present here as the member of audience. Today, I, Saurabh Parmar, a student of Vivekananda Institute of Personality Management, feel myself honored to stand here on the occasion of 159th birth ceremony of Swami Vivekananda ji. This is the one of the best opportunity in my life I have ever received in my life so far. My dear brothers and sisters, I am here to tell you about the message of youth, the message of Swami Vivekananda for youth. So I start with the slok of Sanskrit, that is Uddhama, Sahasam, Dhairyam, Buddhi, Shakti, Parakram. Sadete yatra vartante tatra devam sahayakrita. It means enterprises, courage, patience, intelligence, power and might. God also helped anyone who possesses these 6 qualities. So, arise, awake, and do not stop until the goal is achieved. So, think one idea. Make that idea your life. Think about it, dream it, and live for that. Let your mind, muscles, nerves, every part of the body drown into it. And rest of other things aside. This is the best way to succeed in life. Do one thing at a time. While doing, put your whole soul into it and forget everything else. You cannot believe in God until you believe in yourself. Suppose in a day when you don't have any problem, so you can be sure that you are traveling on the wrong path. In a conflict between the hearts and the brain, always follow your hearts, because
Strength is life, weakness is death. Expansion is life and contraction is death. Love is life, hatred is death. So as we reap what we sow, we ourselves are the creators of our destiny. And last, I would like to say that we should place on this Youth Day that live till, learn till, because experience is the best teacher of the world. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Saurabh Parmar. The next participant is Avni Verma. सभागार में उपस्थित सभी को अभिवादन। मेरा विषय है राष्ट्र निर्माण पर स्वामी विवेकानंद के विचार। राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ साथ आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के इस अमृत महोत्सव ने राष्ट्र निर्माण पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता को और भी बढ़ा दिया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि तुम भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़ो, वहां सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ नहीं। महात्मा गांधी ने कहा, स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ के मेरा राष्ट्र प्रेम 1000 गुना बढ़ गया। एक यायावर और अकिंचन सन्यासी के रूप में भारत के एक कोने से दूसरे तक की अपनी अप्रतिम यात्रा में स्वामी विवेकानंद ने भारत को बेहद करीब से देखा। उन्होंने राष्ट्र की समस्याओं पर गहन चिंतन किया और तब उनके अंतर से निकली यह ललकार, अगले 50 वर्षों के लिए यह जननी जन्मभूमि भारत ही मानो तुम्हारी आराध्य देवी बन जाए। जिन देवी देवताओं को देख नहीं पाते हैं उनके पीछे दौड़ें और जो विराट देवता प्रत्यक्ष हमारे सामने खड़े हैं उनकी पूजा न करें। हमारे देश के ये लोग ही जागृत देवता हैं, इन्हीं की सेवा में प्राणपण से जुट जाओ। स्वामी जी सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं करते हैं, वे एक अक्लांत कर्मयोगी है और वे बताते हैं कि राष्ट्र निर्माण का प्रारंभ व्यक्ति निर्माण से होता है और वे गढ़ना चाहते हैं ऐसे युवा जो अपने कंधों पर उत्तरदायित्व ले देश को अकल्पित ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसके लिए उनका सूत्र है मैन मेकिंग, अर्थात व्यक्ति का निर्माण, और चारित्रिक दृढ़ता ही इसकी पहली कसौटी है। राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्रवान व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और फिर वे जोर देते हैं शारीरिक बल पर। वे कहते हैं, मेरे युवा साथियों, पहले फुटबॉल खेलो, तब तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। वर्तमान भारत में फिट इंडिया का जो अभियान शुरू किया गया है वह निश्चित ही स्वामी जी की इन्हीं बातों से प्रेरित है। राष्ट्र निर्माण पर वे आगे कहते हैं, अतीत के आधार पर ही भविष्य का निर्माण होता है। तुम्हारे पीछे जो अनादि अमृत का स्रोत बह रहा है, पहले उसे जी भर के पी लो, फिर आगे बढ़ो। गौरवशाली अतीत की आधारशिला से बेहतर कुछ भी नहीं। उपनिषदों के सत्यों को आग की तरह फैला दो, तब तुम देखोगे कि अमित मेघा और अतुलनीय विक्रम से युक्त भारतीय युवा विश्व भर में भारत की विजय पताका लहरा रहे हैं। स्वामी जी उपनिषदों की किन सत्यों की बात कर रहे हैं? उपनिषद कहते हैं, तुम अमृत की संतान हो, दिव्यता से परिपूर्ण हो, अभय हो। तुम कैसे नैराश्य और कायरता के वश हो सकते हो? विश्व की जनसंख्या के एक बड़े भाग को प्रभावित करने वाली सिलिकॉन वैली में गूगल से लेकर ट्विटर तक आज भारतीयों का जो वर्चस्व है वह स्वामी जी के सपनों का ही साकार होना है। वे आगे कहते हैं, देश के एक बड़े भाग के प्रति सदियों तक शासन की उपेक्षा ने राष्ट्र की बहुत हानि की है। स्वामी जी इस पर कड़ा रुख अपनाते हैं। वे कहते हैं, शिक्षा को हर तरफ फैला दो। गरीब की झोपड़ी में, दलितों के हृदय में जब हर तरफ ज्ञान ज्योति प्रकाशित होगी, तब राष्ट्र निर्माण में उसका योगदान देखकर हर कोई विस्मित रह जाएगा। राष्ट्र का भविष्य जनसाधारण पर निर्भर करता है। इनको ऊपर उठा दो, राष्ट्र स्वयं ऊपर उठ जाएगा। फिर स्त्रियों के राष्ट्र निर्माण में योगदान पर वे कहते हैं, क्या पक्षी एक पंख से उड़ सकता है? नहीं, पर तुम उनकी चिंता मत करो, बस उन्हें शिक्षित कर दो, वे स्वयं ही अपनी समस्याओं को पार कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान बराबर से देंगी। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद के राष्ट्र निर्माण पर विचार तो सागर रूपी है, जिनमें से गागर भरने का मेरा यह विनम्र प्रयास था। प्रत्येक व्यक्ति को इन विचारों को अपने जीवन में रूपायत करना चाहिए। यही हम स्वामी जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज शिवम रावत। नो, शिवानी जिंदल। Good morning to all respective teachers, honorable guests and my dear friends. Myself Shivani, I am from
Vivekananda Institute of Personality Management. So today I want to tell you something about Swami Vivekananda. As we all know that today we are going to celebrate 159th birth anniversary of Swami Vivekananda. He is our national hero. If you ask any student, scholar and intellectual as who is one single personality to the Indian philosophy and inspiration for youth, the one only single answer is Swami Vivekananda. He influenced millions of youth, not only in India but across the globe. No other icon has influenced the way of Indian life more than true Karmyogi. His famous Chicago speech of 1893 reopened floods gates to quest for Indian way of life and living. His new Vedantic philosophy starts with a question: what is the purpose of life? For him, the purpose of life is a life of purpose, means meaningful, selflessness and serving nation. Life is just not an existence but life is a determined effort to help others. If the mind initially accomplished when mountain can crumble in atoms. Thank you. थैंक यू शिवानी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अगले पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं, शुभम अग्रवाल। Good morning to all of the judges, jury members and the respectable guests and my friends and all members. We are here to celebrate Swami Vivekananda birthday anniversary, which is celebrated on 12 January. Their birthday was on 12 January 1863. We also celebrate this day as National Youth Day, and which was as the Swami Vivekananda birthday. We all are here to make and understand what are their advices to youth. I respectfully and honorably respect that you all are here for taking the advices and learning about them in this era too, where no one have a little bit interest in learning and making understand that what is going in their neighbor and the society, and the youth is busy in their studies and the other bad activities too of social medias and other things. Swami Vivekananda was the idol of spirituality and the advices of the Gita, Bhagavad Gita and our Vedas and all. They learned all the things in their entire time. From the childhood, they are the child of Lord Shivji. The mother of Swami Vivekananda, Miss Bhuvaneshwari Devi, told or make a wish with Lord Shivji that I want a child like you. Lord Shivji said to them that I will come in the form of child to your family. When they born in a philanthropy family. The philanthropy family is a type of family which do many things in the favor of monks and societies, means like favoring and all the peoples for their livelihood and other things. And from the childhood, Swami Vivekananda is also engaged in the monk facilities. They always do one thing from the childhood, like when they ever see a monk in the streets and all, whatever they have with them at that time, they used to give away that things. One time when
when their parents were suffocated with this activity, they closed them in a room, but then also there was a window, and when they see a monk outside the street, they done like whatever is in the room, they used to throw out that you should take away this and this. After that, as they grown older, they have two visions entire life of Lord Buddha. Like first vision is of you are the best and the most richest person in this world. You have all the facilities of your life, the wealth and the basic facilities. And the other one is the worship of Lord Buddha and making the youth available all the facilities which is making their youth best and best. That advices of Swami Vivekananda are when they become older of 30 to 29 age, that if you see the goals at the highest position, at highest location, you reach the highest. Second is when you arise your spirituality, arise your goals, whenever your goals are higher, you can achieve the highest rank. Thank you. Ma'am Agarwal. Our next participant is Sudarshan Singh Gurjar. अतिथिगण और गुरुजनों एवं समस्त मेरे युवा साथियों, आप सबों को मेरा सुप्रभात और श्री विवेकानंद स्वामी जी की जयंती और जन्म दिवस पर आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने मनुष्य के आत्मबल आत्मविश्वास पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के अंदर यदि आत्मबल को जागृत कर दिया जाए तो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने अपने शिक्षा दी है कि उठो, जागो और जब तक अपने अंतिम देह को प्राप्त न हो जाओ, जब तक चैन मत लो। अपने इस व्यामोह को त्याग दो और अपने लक्ष्य की ओर जाओ, उसको प्राप्त करो। उन्होंने मनुष्य की आत्मा के बारे में कहा कि आत्मा सर्वशक्तिमान है और अनश्वर है, उसको कोई भी मान नहीं सकता। उसी के अंदर आपकी सारी शक्तियां समाहित हैं। यदि आप इस आत्मा को जागृत करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि एक युवा को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इससे वह अपनी अंदर की जो शक्तियां हैं, अपार शक्तियां, उनको वो जागृत कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने समाज सुधार और समाज सेवा पे बहुत बल दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को समाज सेवा, निर्धनों की सेवा, गरीबों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, वो उसका परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा है कि भारत में समाज सुधार और समाज सेवा के लिए प्रथम शर्त यह है कि भारत को पहले शिक्षित किया जाए। भारत को दोनों प्रकार से शिक्षित किया जाए, भौतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा, दोनों प्रकार से। आज भारत में भौतिक शिक्षा का तो प्रसार हो रहा है, लेकिन नैतिक शिक्षा की कमी हो रही है। हमारे अतीत में हमें जो नैतिक शिक्षा दी जाती थी, जिसके कारण समाज में जो क्राइम था वो कम था। आज भौतिक शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन आज जो नैतिक शिक्षा है उसकी बहुत कमी है। तो हमें नैतिक शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें इसी उम्र में भगवत गीता, रामचरितमानस, इन सबों का अध्ययन करना चाहिए। इससे कि अपने ज्ञान का जो विकास होगा और इससे अपन को और जो लाइफ अपनी लाइफ है उसको एक अच्छी तरह से जीवन जी पाएंगे और जीवन में अपना जो ध्येय है उसको प्राप्त करेंगे। अपन जो भी जिस भी फील्ड में काम करें, चाहे वो एजुकेशन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या सेल्फ वर्क या समाज सेवा हो, उसमें अपना 100% देंगे। वही अपना ध्येय है और वही अपना कर्तव्य है और इसी से अपन को एक मोक्ष की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। आज समाज में नैतिक शिक्षा नहीं है, इसलिए आज समाज में इतने क्राइम हो रहे हैं। आज देखो, जिस देश में
नारी को अतीत से सभ्यताओं से शताब्दियों से जिस देश में नारियों की पूजा की जाती है, आज उसी देश में जो स्त्रियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उसमें ये किस कारण हो रहा है? इस कारण हो रहा है क्योंकि आज नैतिक शिक्षा की कमी है भारत में। आज मैं इस युवा पीढ़ी से ये संकल्प करने की गुजारिश करता हूं कि कृपया अगले जो साल आए उनमें कम से कम अपनी जो बहनें हैं, माएँ हैं, स्त्रियां हैं, सबों का आदर करें। और भारत में स्त्री को एक मां माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि भारत में एक स्त्री नहीं, एक मां है। और विदेशों में तो स्त्री को स्त्री माना जाता है, लेकिन भारत में स्त्री को मां भी माना जाता है, इसलिए भारत माता कहा जाता है। भारत माता की जय। धन्यवाद। नरेंद्र मीना, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। आदरणीय महोदय एवं मेरे माता पिता के समान आए हुए अतिथि एवं सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र मीना आज युवा दिवस में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रीय निर्माण के योगदान में कुछ विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कास्ट परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद वेदांत के प्रख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। सन 1883 में शिकागो अमेरिका सम्मेलन में विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इसी ही शिकागो भाषण ने भारत यूरोपीय पश्चिमी दुनिया को भारतीय जीवन और जीवन शैली से रूबरू कराया था। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्तित्व नहीं, एक बुनियाद है, ऐसी बुनियाद जिस पर भारत का विराट और सांस्कृतिक महल खड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के कई पहले लोगों को धर्म के आधार पर जागृत किया और शोषित महिला व शिक्षित करके देश के जागृत होने के लिए प्रेरित किया। आज भारत में नहीं भले विश्व के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद विश्वसनीय एवं प्रशंसनीय अनुकरणीय है। स्वामी विवेकानंद एक सच्चे राष्ट्रीय भक्त थे, उनके अंदर राष्ट्रीय भक्ति थी। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को समाज की रीढ़ की हड्डी माना है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा व्यक्ति में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास ने जगाए, उस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षा का औचित्य व्यक्तित्व एवं समाज के कल्याण में, देश के कल्याण से होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए 5 पहलू थे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आत्मविश्वास, आत्मत्याग, आत्मसंयम, आत्मसम्मान को जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले, वो व्यक्ति अपने आप का, वह समाज का और वह भारत के पुनर्निर्माण कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के एकता के बारे में, एक राष्ट्रीय निर्माण के एकता के बारे में कहा कि चाहे भारत में भाषीय जातिवाद व ऐतिहासिक विविधता है, लेकिन भारतीय सांस्कृतिक लोगों ने इस जाति विविधता को एक सूत्र में पिरोए हुए है। इसलिए मुझे गर्व है कि भारतीय लोग जागृत होकर धर्म के पहले लोग भारत के बारे में 19वीं शताब्दी के अंत में भारत के बारे में बहुत कम जानते थे। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को हर कोने में, भारत के हर कोने में जाकर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का सार पढ़ाया। लोगों को शिक्षित व महिला को शोषित, जो महिला शोषित थी उन्हें राष्ट्र निर्माण के योगदान के बारे में राष्ट्र के योगदान देने की बात कही थी। और स्वामी विवेकानंद के एक पश्चिमी शिष्यों ने कहा कि जब हमारे लिए भारत का प्यार हमारे लिए तब जागृत हुआ। मुझे लगता है कि जब स्वामी विवेकानंद पहली बार अपनी अद्भुत आवाज से भारत कहते हुए सुना था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जागो और उठो, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। थैंक यू। धन्यवाद नरेंद्र मीना। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट शशांक सेन। Good evening, all of you, all respectively my teachers, honorable guests, and all dear my friends. Today, I, Shashank Sen, discuss about. First of all, today we are here 159 birth celebration of Swami Vivekananda. First of all, I discuss about the
about the Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was born on 12 January 1863 in Bengali family in Kolkata. Swami Vivekananda, his father's name Vishwanath Dutt and his mother's name Bhuvneshwari Devi. Swami Vivekananda, full name of Swami Vivekananda, Narendranath Dutt. Swami Vivekananda, student of the Presidency College. Swami Vivekananda only one of the student get the first division in the Presidency College. Swami Vivekananda inspired his Guru Ramakrishna, and he was associated Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. In 1880, Swami Vivekananda joined the Keshav Chandra Sen's Navvidan. In 1885, the Ramakrishna Mission developed the throat cancer, and in 1885, in 1880, Swami Vivekananda left the monasteries Apravajak and the Hindu villages, and when the Swami Vivekananda left the Bombay, 31 May 1893, the king of Khetri suggested the name of Swami Vivekananda by king of Khetri by Ajit Singh, and 4 July 1902, death of Swami Vivekananda. And in the last, the message of the Swami Vivekananda, Swami Vivekananda says that you stand up, you walk up, and you do not stop still your goals. And Swami Vivekananda believed in duty of country, and so Swami Vivekananda told about the way of success. Self-confidence is the way of success. Thank you. उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसी प्रेरणा को आज, इसी स्वामी विवेकानंद के इसी संदेश को आज युवक प्रेरित है। स्वामी विवेकानंद अपने दर्शन में सत्य को सर्वोपरि मानते थे। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें सबसे बड़े से बड़ा सत्य निडरता से सामने आ सके। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी प्रासंगिक है। आज नहीं, 100 वर्ष पहले भी इतने प्रासंगिक थे जितने आज प्रासंगिक है। मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी। सुप्रभात सभी को मेरा अभिवादन। सुप्रभात सभी को मेरा अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे राष्ट्रीय युवा दिवस पर इस मंच पर बोलने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। उठो जागो तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद की इसी संदेश से आज भी युवक प्रेरित है। आज भी युवा, बहुत सारे युवा आज भी प्रेरित हैं। स्वामी विवेकानंद अपने दर्शन में सत्य को सर्वोपरि मानते थे। वे एक ऐसे समाज का निर्माण वे एक ऐसे समाज चाहते हैं जिसमें बड़ा से बड़ा सत्य निडरता से सामने आ सके।
स्वामी विवेकानंद आज ही इतने प्रासंगिक है जितने वे 100 वर्ष पहले थे। तो आइए कोशिश करते हैं जानने की, समाज को एक नई दिशा देने वाले महान शख्सियत के बारे में करीब से जानने की कोशिश करते हैं। जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु परमहंस से मिले तो सबसे पहले उनका एक ही प्रश्न था जो उनको परेशान कर रहा था। प्रश्न ये था कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो श्री परमहंस उन्होंने बिना हिचकिचाए बोला, हाँ मैंने देखा है। मैं आज भी मैं अपनी अंतर्मुखी आत्मा, मन या भाव से उनको देखता हूँ जैसे कि मैं तुम्हें देखता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने भारत का दौरा किया तो उन्होंने भारत की गरीबी, बदहाली और पीड़ा को देखकर दुखी हुए। तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दरिद्र नारायण की सेवा करना अथवा दुखी मानव की सेवा करना। 18 सितंबर 1993 को विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने विश्व प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के बारे में बताया और उन्होंने कहा था सहनशीलता विचार सुदूर पूर्व देशों में फैला हुआ, और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जहाँ सहनशीलता और सार्वभौमिक का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के संदेश देते हुए संपूर्ण संसार को एक परिवार के रूप में मानने का संदेश दिया है। और उन्होंने यूके और यूएस में कई स्थानों पर व्याख्यान दिया और साथ में उन्होंने जहां से वे मैसेंजर ऑफ इंडिया विजडम टू द वेस्टर्न वुड के से इतने लोकप्रिय हुए और उन्होंने आयरिश माध्यमिका मार्गरेट नोबल को भारत आने का आमंत्रित किया क्योंकि ताकि वो भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में सहायता कर सके, तथा आगे जाकर मार्गरेट नोबल ने ही शिष्य निवेदिता की मान्यता प्राप्त हुई। आज स्वामी विवेकानंद का मानना है कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और हठधर्मियों की चलते हुए पृथ्वी हिंसा में जकड़ी हुई है। आज पूरे विश्व भर में हिंसा फैली हुई है। पूरा संसार सर्वशक्तिमान बनने की होड़ में इस रास्ते पे चल रहा है कि उन्होंने संसार और जैव विविधता पेड़ पौधों की कई प्रजातियां लुप्त हो गई है। इसका चलते हुए आज हम ताजा उदाहरण देखते हैं कोरोना, जहाँ समूचे विश्व को एक साथ होकर कोरोना से लड़ना चाहिए, वहीं हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कभी आंतरिक मतभेद, सीमा विवाद और ट्रेड वार, जातिवाद, धर्म संप्रदायता के ऊपर हम लड़ रहे हैं। तो हमें स्वामी विवेकानंद से अच्छी सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद। राहुल यादव। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। रोज सुबह जब मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश करता हूँ तो मुख्य द्वार पर लगी हुई स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा मुझे इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि इस विश्वविद्यालय के विचार निर्माण में और भारतीय समाज के मूल्य निर्माण में इस युवा सन्यासी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी क्षमता, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि स्वामी विवेकानंद के संदेशों को समाप्त कर सकूं, लेकिन मेरे जीवन दर्शन के निर्माण में स्वामी जी के जिन संदेशों का महत्वपूर्ण योगदान है, मैं आपके सामने वो रखने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहला संदेश जो मेरे हिस्से में आया वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का है। हम अपने आप को इस बॉडी के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, शरीर के सुखों से सुखी खुश होते हैं, तुच्छ सुखों में हम आनंदित होते हैं और इसके दुखों से परेशान होते रहते हैं।
जबकि वेदांत दर्शन हमें बताता है कि हम ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि कॉज ऑफ द हैपनिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैं। हम वो ऊर्जा हैं जो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को संचालित कर रही हैं। और एक बार जब हम अपने आप को उस ऊर्जा के रूप में आइडेंटिफाई करें तो हम पाएंगे कि ना सिर्फ हम एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है बल्कि इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हमें अलग किया ही नहीं जा सकता। और जैसे जैसे हम इस अद्वैत अनुभूति की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी क्षमताओं का अद्भुत विस्तार होता है। दूसरा संदेश स्वामी जी का टॉलरेंस को लेकर है। टॉलरेंस, हम आजकल संप्रदायों में बट रहे हैं, नए संप्रदाय बन रहे हैं, संप्रदायों में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, पर स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक संप्रदाय के दो हिस्से होते हैं, एक गौण और दूसरा मुख्य फिलोसॉफिकल हिस्सा। और यदि गौण हिस्से को छोड़ दिया जाए तो सभी संप्रदायों का फिलोसॉफिकल हिस्सा बिल्कुल एक जैसा है। सबका उद्देश्य है मानव का नैतिक उत्थान। और इसी के लिए स्वामी जी ऋग्वेद से कोट करते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को कहने के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग नामों से जानने के कारण सत्य बदल नहीं सकता। और यदि आज के समाज को इस संदेश की बेहद बेहद आवश्यकता है। स्वामी जी का तीसरा संदेश उस परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयत्न करेंगे कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज और हमारे तथाकथित राष्ट्रीय नेता अंग्रेजों की संस्कृति और सभ्यता को पहले से ही सर्वोत्कृष्ट मान चुके थे। उस समय में एक सन्यासी अमेरिका जाकर यह सिद्ध कर पाता है, अंग्रेजों को यह कहने के लिए मजबूर कर देता है कि यह हमारी गलती थी कि हम वहां क्रिश्चियन मिशनरीज, इतने सुसभ्य सुसंस्कृत देश में क्रिश्चियन मिशनरीज भेजते थे। ऐसे में स्वामी जी कहते हैं कि जब पश्चिम सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का हल ढूंढने के मॉडल ढूंढ रहा है, स्वामी जी नए और सच्चे साम्यवाद और सच्चे लोकतंत्र की बात करते हैं, जिसका जो व्यक्ति के चरित्र और नैतिक गुणों पर, चरित्र निर्माण और नैतिक उत्थान के ऊपर निर्भर करता है। अब समय है कि हम स्वामी जी को एक ऊर्जावान युवा भर से अधिक उनकी उपनिषदों की शिक्षा के रूप में, उनकी उस थॉट प्रोसेस के रूप में जो उन्हें आदि शंकराचार्य से प्रभावित होकर मिली है, श्री कृष्ण से प्रभावित होकर मिली है, उपनिषदों और वेदों से प्रभावित होकर मिली है, उस पर भी विचार करें और अपने चरित्र निर्माण के अंदर उनकी शिक्षाओं को सम्मिलित करें। धन्यवाद। Now last two participants, Tushar Gunawat. A very good morning to all the respected guests present here. Today we are here to remember, to celebrate a man who was not just a great figure in the history of our beautiful nation, but a dreamer. An international treasure who dreamed big day and night. And another international treasure vouches for his assertion. When Mahatma Gandhi visited Belur Math in 1921, he wrote, "After reading Swami's work, my love, my patriotism for the country had increased 1,000 folds." Sister Christine wrote in her reminiscences that our love for India came to birth when we first heard him say the word India. That was his love for our beautiful nation. When we read about the life of Swami, we get an insight. He had a thorough knowledge about the prestigious past of India. After the demise of his guru, his mentor, Sri Ramakrishna, he went on a pilgrimage of the entire country on his foot. He met people from every segment of the society. He met from the Maharajas to the penniless beggars. He met from the richest to the poorest, from the most learned to the most ignorant. This exploration of him, it gave him a complete understanding of the working of our nation. How a nation works, what makes it successful, and what causes its downfall. After getting a huge fame during his 4 years stay in West, when he was about to depart for India, a Western asked him how he was feeling about returning to his motherland. To that, Swami replied, "India, I loved before I came away, is now the very dust of India is holy to me. It has now become a holy land, the site of a pilgrimage, a Tirath." Swami said one of the major reasons of our downfall was that the low and the poor of India have no friends, no support. They cannot rise, try however they may.
they just sink lower and lower every day. Millions of people are oppressed on the name of religion every day. Monopoly of education by a few belonging to the privileged classes. Swami said that the total difference between West and East is that they are nations and we are not. There is an infinite distance between the lower classes of these countries. Swami said, to grow as a nation, the first very step is to uplift the masses of India by making them aware of their individuality and by making them aware of their faith in themselves. To be honest, I don't think these few minutes are enough, or in my own opinion, this whole life is enough to cherish or follow the footsteps of Swami Vivekananda. All we can do is just try our best. Because me and you, the youth of India, we are the future of this nation. Now, I would like to conclude my speech quoting Swami Vivekananda's words. There is no greater teacher in this world than your own soul. There is no one to teach you the spirituality of your own. You have your own. Educate yourself, because education is the only reason that can rise a nation. Thank you. Thank you, Tushar. And the last one, Ashutosh Pawar. सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करता हूँ, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी को भी नमन करता हूँ और यह उपस्थित सभी मनुष्यों को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम आशुतोष पवार है और मेरा विषय है राष्ट्र निर्माण पर स्वामी विवेकानंद के विचार। मात्र 4 मिनट में स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्र निर्माण पर जो भी विचार है, जैसे मानववाद, नव्य वेदांतवाद और युवाओं पर उनके विचार, इन सब को इतने कम समय में पूरी तरह से कह पाना उनके विचारों का अपमान होगा और ये 4 मिनट में संभव नहीं है। इसलिए मैं उनके एक मुख्य विचार पर ही ज़्यादा प्रकाश डालने की कृपा करूँगा। आप अव्याप्ति दोष के लिए माफ़ी चाहता हूँ। उनका जो मुख्य विचार है राष्ट्र निर्माण पर, वो यह है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। मुझे ये उनका कंक्लूजन लगता है उनके सभी विचारों का कि अगर आपको नारायण सेवा करनी है तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य की सेवा कीजिए, वही नारायण सेवा है। 20वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक है कार्ल मार्क्स, जिनका नाम आपने सुना होगा। मैंने जब कार्ल मार्क्स को पहली बार पढ़ा तो उनका एक कोटेशन मेरे मन में चुप सा गया कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है। धर्म ही हमें भेदभाव सिखाता है। धर्म ही पूंजीपतियों को अधिकार देता है कि वे निम्न वर्गों का शोषण करें। उसके बाद जब मैंने गांधी जी के विचार पढ़े तो मैंने पाया कि गांधी जी कहते हैं धर्म के बिना मनुष्य मृत देह के समान है। जब दो महान व्यक्ति अलग अलग बातें करें धर्म पर तो मेरे लिए कन्फ्यूज़न हो जाना आम बात थी और मैं इतने साल तो कन्फ्यूज़न में ही रहा। लेकिन पिछले 2 दिन में इस प्रतियोगिता के कारण मैंने स्वामी जी के विचार को गहनता से अध्ययन करने का मौका मिला तो मैंने पाया कि जो कन्फ्यूज़न मुझे थे धर्म को लेकर कि वो गांधी और मार्क्स में से मैं किसको सही मानूं, स्वामी विवेकानंद जी के विचार पढ़कर मैं कंक्लूजन पर पहुंच पाया और ये समझ पाया कि धर्म को देखने का अपना नज़रिया मैटर करता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि धर्म के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है और धर्म क्या है, वो ये है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। आप मनुष्य की सेवा कीजिए, निम्न वर्ग के लोगों की सेवा कीजिए, आपको मंदिर मस्जिद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी कारण हम स्वामी जी को इतना महान मानते हैं और राष्ट्र निर्माण पर उनका विचार अतुलनीय है। एक निदा फाजली साहब का शेर है, उस शेर से अपनी बात खत्म करना चाहूँगा क्योंकि उनके शेर में स्वामी विवेकानंद जी के इस विचार का सही तरह से परस्पर समन्वय दिखता है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। घर से बहुत दूर है मंदिर मस्जिद, चलो यूँ कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। धन्यवाद। श्रेया गुहा एक मीटिंग के कारण उनको जाना है। यद्यपि हम चाह रहे थे कि वो रुके, लेकिन क्योंकि उनको जाना होगा।
हमारे निर्णायक मंडली के एक सदस्य हमारे डॉक्टर विकास नोटियाल जी से आग्रह करूंगा कि वे इस युवा दिवस के शुभ अवसर पर, इतने सारे युवा वहाँ यहाँ मौजूद है, और डॉक्टर विकास नोटियाल क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं बहुत समय से, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारे यहाँ उपस्थित युवाओं को कुछ अपना संदेश दें। डॉक्टर विकास नोटियाल जी। सर्वप्रथम श्री विवेकानंद जी को नमन। स्वामी जी महाराज, निर्णायक दल के अन्य सदस्य, प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें की और बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हैं युवा दिवस, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों विवेकानंद जी का ही जीवन और उनका दिन ही लिया गया? ये प्रश्न पहले विचारणीय है। बहुत छोटे बच्चे हमारे बीच में भी हैं, बहुत अच्छा लगा 9-10 साल के बच्चों को ऐसे देखते हुए। जब हम पूरे इस देश के इतिहास और संस्कृति को देखते हैं, 1984 की बात है, राजीव गांधी सरकार सत्ता में आई, तो उस वक्त यह निर्णय लिया गया कि विवेकानंद जी के इस 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में, और राष्ट्रीय शब्द आया साथ में, खाली युवा दिवस नहीं है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाएं। आप सबने इस बात को सुना है और पूरी दुनिया में यह बात जाती है कि भारत युवाओं का देश है। भारत, अभी किसी बच्चे ने भारत के युवाओं के परचम की बात की कि कैसे लहरा रहा है, चाहे वो गूगल है, चाहे हम और यूएस के या यूरोप के किसी और भाग को देखें, आईटी सेक्टर को देखें, तो युवा मन को उद्वेलित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो स्वामी विवेकानंद है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का नाम, उनका दिन इस राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ जोड़ा गया, और इस रूप में हम आज सबसे पहले 12 जनवरी 1985 को यह दिवस मनाया गया। अब दूसरा सवाल आता है, राष्ट्र क्यों, राष्ट्रीय क्यों? ये इसलिए आया, हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी हुए सुभाष चंद्र बोस, संभवतः हर देश के व्यक्ति के हृदय में चलने वाला एक दिया। उन्होंने कहा था कि विवेकानंद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पिता हैं। जैसा कि अभी बच्चों ने भी बात की और मैडम ने भी यहां पे कहा कि टैगोर साहब ने कहा था कि भारत को समझना है, तो विवेकानंद को समझें। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पिता हैं। तो जब राष्ट्रवाद की नई नई परिभाषाएं बनने लगी, तो एक परिभाषा पर आकर हम केंद्रित हुए और वो था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। विवेकानंद का चिंतन, दर्शन, अंतरराष्ट्रीय जो उन्होंने एक छवि बनाई, उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को डिफाइन करने का सबसे जो गहरा भाग है वो उन्हीं के चिंतन में, दर्शन में है। इसलिए शब्द राष्ट्रीय भी आया। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात आई। तो अब एक बात यह आती है, हमने विचारों की बात की, दर्शन की बात की, चिंतन की बात की, तो नो डाउट विवेकानंद का चिंतन वैदिक संस्कृति, औपनिषदिक संस्कृति, श्रीमद् भगवद गीता से ओतप्रोत है। लेकिन जब हम पश्चिम के दर्शन की बात करते हैं, तो पूरी 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी का चिंतन, चाहे वो मिल के पास जाए, जेम्स मिल, चाहे हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, चाहे स्पिनोजा की बात करें, जितने चिंतक थे, उनको विवेकानंद जी ने उस समय 70 और 80 के दशक में बड़ी गहराई से पढ़ा, जब वो गुरु जी के भी संपर्क में नहीं आए थे। तो
विलक्षण व्यक्तित्व डेवलप हुआ और गुरुजी के संपर्क में आके वो विलक्षण व्यक्तित्व एक दिव्य व्यक्तित्व बन गया। हमने बात की 1893 की, बच्चों ने पे काफी बार बात की इस संदर्भ में। वर्ल्ड पार्लियामेंट, विश्व धर्म संसद, न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर था। उस न्यूज़पेपर ने लिखा उनको सुनने के बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं मिला क्योंकि दृष्टिकोण कॉलोनियल था। भारत वाला क्या जानता है, भारत की संस्कृति क्या है? बच्चे यहां पर बैठे हैं, आप लोग सुनिएगा। भारत की संस्कृति और भारत के व्यक्तित्व को लंदन वीकली कैसा दिखाता था? एक गुरिल्ला चिंपैंजी दिखाया जाता था और कहते थे ये इंडियंस हैं। ये थी भारत की तस्वीर, ऐसा दिखाया आपने हमारे भारत को। और उसी भारत की तस्वीर को वर्ल्ड पार्लियामेंट में विवेकानंद ने रखा। तो उस न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि कितने अज्ञानी हैं हम लोग जो इस ज्ञानी के देश में अपनी मिशनरियों को भेजते हैं। तो पक्ष कई से हैं। अब एक बात आती है आजकल, क्योंकि सवाल यह है कि केवल हम चिंतन पर चर्चा करेंगे, आज पर चर्चा नहीं करेंगे, तो यह विवेकानंद की विचारधारा के साथ न्याय नहीं होगा। आज का विचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आता है जिसको हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। 1976 की बात है जब वीना मजुमदार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और आज तो हम देख रहे हैं कि 5 ईयर प्लान्स और भारत सरकार की योजनाओं में इसको सम्मिलित किया गया है। वो बड़ी फेमस लाइन उनकी आती है कि अगर मुझे 500 युवा, पुरुष युवा समर्पित रूप से मिल जाए, मैं इस देश को 50 साल में बदल दूंगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ 50 महिलाएं समर्पित मिल जाए तो मैं कुछ ही वर्षों में इस देश को बदल दूंगा। ये लाइन इस बात का संकेत देती है कि जिस बात को 100 साल के बाद हम भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स में देख रहे हैं, जिसके आधार पर हम महिला सशक्तिकरण की नीतियां बना रहे हैं, वो बात विवेकानंद ने 100 साल पहले सोची। जब यहां पर औपनिषदिक चिंतन की बात आती है तो अभी एक बच्चे ने यहां पे बोला था मानव धर्म, मानव सेवा, दरिद्र नारायण। हां, नारायण में दरिद्र का रूप देखना। तो बाद में यही विचारधारा आगे बढ़ी और शब्द आया सर्वोदय, अंत्योदय। निसंदेह लोकतंत्र का मूल आधार उस सबसे नीचे वाले व्यक्ति में निहित है, इसलिए ये बिंदु सारे डेवलप हुए। अब जब हम ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के अंतर्गत उनकी सारी विचारधारा को देखते हैं तो वो उनके एक चिंतन का प्रश्न है। उस चिंतन के प्रश्न के साथ साथ हम आज जब विवेकानंद पर यहां पर विचार कर रहे हैं तो उनकी हर चीज को ये देखें कि आपके और हमारे जीवन में हम 1% भी अपनाएं, एज ह्यूमन बीइंग अपनाएं। हम 100% नहीं कर सकते, हम 1% भी करें तो हमारा कल्याण होगा। आज हम जिस कोविड के दौर में गुजर रहे हैं, हमारे बच्चों के पास सबसे बड़ी समस्या ये आई है कि सब बच्चे मोबाइल के दीवाने हो गए। और बच्चे ही नहीं, बच्चों को भी, केवल बच्चों को कहना ये थोड़ा सा अन्याय होगा। लगभग काफी सारे लोग हैं इसमें, युवा भी है, एडल्ट भी है। 4 जगहों को देखिए, अगर आप मोबाइल में ही देखते हैं तो 4 जगह देखिए। वेलूर मठ की पूरी साइट, अब तो पूरा वीडियो अवेलेबल है हर चीज का। अमरावती मठ, आखिरी चट्टान यानी कन्याकुमारी, खेतड़ी, ये 4 जगहें हैं जो विवेकानंद के विचार, विवेकानंद की आइडियोलॉजी और उनकी पूरी तस्वीर को हमारी नई जनरेशन के सामने रखती हैं। आज ये भी नहीं है कि आप वेलूर ही चाहिए,
आप सब कुछ आप घर पे देख सकते हैं। अभी आपको बताया गया कि खेतड़ी में डिजिटल एक पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। तो आने वाले समय में जब हम पुराने लोगों की बात करते हैं तो उस समय सब कुछ पढ़ना पड़ता था, देखना पड़ता था। तो आज स्टडी का एक नया तरीका आया जिसको हम फील्ड स्टडी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के लोग हैं तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि सरकार में इस चीज का प्रोविजन है, यूजीसी में प्रोविजन है कि फील्ड स्टडी करवाई जाए, केवल किताबी ज्ञान नहीं, फील्ड स्टडी। स्वामी विवेकानंद रचनात्मक समाज और रचनात्मक बिंदुओं पर बात करते थे। अब मैं अंत में इस बिंदु पर आऊंगा कि हम इस देश को, इस राष्ट्र को उस तरफ ले जाएं जहां पर एक रचनात्मक समाज डेवलप होता है, जहां हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विकास नोटियाल जी, आपकी ओजस्वी वाणी का हम सब ने बड़ा आनंद उठाया है। अभी मैं निर्णायक मंडल की एक हमारी सदस्य डॉक्टर शिप्रा माथुर जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी संक्षेप में अपना उद्बोधन दें। सभी युवाओं को बहुत आशीष, बहुत साधुवाद। जो आपने उद्बोधन दिया, जिस तरह से चिंतन मनन करके आपने अपनी बात रखी सबके सामने, उसमें बस एक टिप्पणी मेरी, जो आप लोगों का उद्बोधन था। विवेकानंद हमेशा शिक्षा के बारे में कहते थे कि शिक्षा क्या है कि जो रग रग में समा जाए, जो भीतर समा जाए पूरी, वो असल शिक्षा है। तो जब आप मंच पर आ रहे हैं, पूरे मनोयोग से तैयारी करके आ रहे हैं, तो अगर अपनी भाषा में बोले, अपनी बात सबसे बेहतर जो कही जा सकती है वो स्वभाषा में कही जा सकती है। कहते हैं कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न मिटे न यह को शूल। तो अपनी भाषा में अगर आप बात कहेंगे, मैंने देखा कि बहुत बच्चे अंग्रेजी में तैयारी करके आए, अच्छी बात है, ये उनकी शायद ललक होगी कि एक भाषा जो उनके काबू की नहीं है, जो उनकी पकड़ की नहीं है, उसमें भी मेहनत की जाए। लेकिन जब आप अपने भाव अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो अपनी भाषा से बेहतर मुझे लगता है कि कुछ नहीं होता। मैं इस परिसर की हमेशा से कृतज्ञ रही हूँ और ये मैं बार बार दोहराती हूँ जब भी आती हूँ, क्योंकि यहाँ से जो मेंटरिंग आशीष महाराज जी के ज़रिए इस परिसर में जो मुझे मेंटरिंग मिली, इतनी इसी उम्र में जिस उम्र में आप सब लोग हैं, और उसने जो दिशा दी, तो मुझे सिर्फ आज 2-3 बातें जो मुझे लगता है कि आज के दौर में रेलेवेंट है। क्योंकि जिस दौर में विवेकानंद ने अपनी यात्रा की, अपनी आध्यात्मिक यात्रा, और उसके जरिए अपने अद्वैत के जो द्वार पूरी दुनिया के लिए खोले, वो हालात आज भी हम देख रहे हैं। जो मजहबी खाई है, जो भेदभाव की बात है, ऊंच नीच की बात है, कट्टरपन की बात है, वो आज भी एग्जिस्ट करती है। और तो माहौल में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, और इसीलिए सार्थकता उन सारी बातों की हमेशा रहेगी। इसको अगर हम नए संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है कि जो आज हमें जो सारा उद्बोधन में सुनती हूँ, उसमें महाराज जी मुझे ये भी लगता है कि राजस्थान का संदर्भ कहीं नदारद रहता है। और राजस्थान, हम खेतड़ी की बात करते हैं, लेकिन पूरे राजपूताने में, जो कि राजस्थान पहले राजपूताना कहलाता था, वहाँ पर करीब साल भर का वक्त, अलग अलग वक्त में विवेकानंद आए, अलग अलग स्थान पर गए, आबू रहे, और उन कहानियों में वो सारी बातें जो आज के दौर में रेलेवेंट है, आज के दौर में उतनी ही सार्थक है, उन पर बात होनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं मजहबी खाई की, तो जब आबू में रहे विवेकानंद, तब वहाँ मुंशी फैज़ अली खान साहब के रहे, और जब उनसे खेतड़ी के जो मुंशी जी थे, जब पहली बार मिलने गए तो उन्होंने वहीं उन्हें रहते हुए देखा, और ये बात उन्होंने पूछी कि आप हिंदू सन्यासी होके किसी मुसलमान के घर रह रहे हैं। तो इस बात पर उन्होंने बहुत बेबाकी से ये बात कही कि हिंदू सन्यासी किसी भेदभाव को अगर हम देखने लगे तो ये जो वर्जनाएं हैं, समाज की वर्जनाएं हैं, ये हम पर लागू नहीं होते, और ये नज़रिया हमें बदलना चाहिए। तो ये जो सीख है, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है कि आज जो हम भेदभाव, ऊंच नीच की बात करते हैं, विवेकानंद ने उसको किस तरह से एड्रेस किया। राजपूताने में रहते हुए जो और भी बातें जो हमें मुझे लगता है कि जानिए, कि उन्होंने अलवर में रहते हुए जो युवाओं से संवाद किया,
उस युवाओं के संवाद में आज हम देख रहे हैं कि खेती बाड़ी की फिर से बात होने लगी। आज कोविड के दौर में सिर्फ एक सेक्टर है, जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने वाला सिर्फ एक सेक्टर रहा, वो है फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। और जब युवाओं ने उनसे पूछा कि नौकरी और आजीविका का सबसे अच्छा साधन क्या होना चाहिए, तो विवेकानंद ने वो जवाब उस वक्त दिया था कि सबसे अच्छा पेशा मुझे लगता है वो है खेती बाड़ी का। और उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि क्योंकि आज भी हम ये फेस कर रहे हैं कि जो ग्रामीण युवा है वो पलायन कर रहा है, और पलायन करने के पीछे जो पूरी हमारी आर्थिक जो गणनाएं हैं वो सारी उथल पुथल हो रखी हैं। तो उसका मूल जो है वो उन्होंने कहा कि जब पढ़े लिखे युवा, अच्छी समझ वाले युवा, वैज्ञानिक चेतना वाले युवा गांव की ओर देखने लगेंगे तो हमारी असल समृद्धि होगी। और ये जो समृद्धि की बात है वो आज अगर हम ये भी देखें कि विवेकानंद के जो विचार हैं वो हमारे संविधान के संदर्भ में हम कैसे देखें, क्योंकि आज हमारे सामने जो एक खाका है, एक फ्रेमवर्क है काम करने का, वो संविधान हमें देता है। और उस संविधान में हमें वो कहते हैं, जो अगर हम हक की बात तो हम लोग करते हैं हमेशा कि हमारे राइट्स क्या हैं, लेकिन जो ड्यूटीज है हमारे संविधान में आर्टिकल 51A में, उस ड्यूटी में उन्होंने जो सबसे अहम बात है जो आज हमें बार बार याद रखनी चाहिए और जो विवेकानंद के संदर्भ में भी रेलेवेंट है, वो ये कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ हासिल करना, वैज्ञानिक चेतना के साथ में आगे बढ़ना और जीवन का सर्वश्रेष्ठ हासिल करना, ये हमारा ध्येय, ये हमारा राइट नहीं है, ये हमारी ड्यूटी का पार्ट है, जो कि आर्टिकल 51A कहता है। और उस वैज्ञानिक चेतना को विवेकानंद ने कैसे जिया कि जब वो अमेरिका यात्रा पर थे तब आपने निकोला टेस्ला का नाम सुना होगा। टेस्ला, और जो कि उस सदी के सबसे महान इनोवेटर इस सदी के कहलाते हैं। टेस्ला और विवेकानंद का जब छोटी सी मुलाकात का जिक्र कहीं आता है, और टेस्ला और विवेकानंद की मुलाकात में जब उन्होंने कहा कि जो मैटर और एनर्जी के कॉन्फ्लिक्ट में जो आप कहीं अटके हुए, अगर आप वेद पढ़ेंगे, अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे तो शायद आपको कुछ रास्ता मिल जाएगा। और इसीलिए टेस्ला के आगे के काम में प्राण शब्द का जिक्र मिलता है उनके काम में। तो वो इंस्पिरेशन जो है विवेकानंद ने दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो आज सबसे टॉप हमारा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन कहलाता है, उसकी प्रेरणा विवेकानंद ने दी। तो हम जिस वैज्ञानिक चेतना की बात हमारी एज पार्ट ऑफ आर ड्यूटी इन आर कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 51A, उसमें जो जिक्र है, तो वो सारी विरासत, क्योंकि हमारा ही देश है जहाँ की राजा रानी, कोई आसमानी किताब, कोई सेनापति, ये नायक नहीं रहे, हमारे ऋषि मनीषी ही नायक रहे, उन्हीं को आदर्श मानता आया है ये देश। और उस आदर्श को हम जितना फॉलो कर पाए, जितना हम उसमें अध्ययन के साथ मनन की प्रक्रिया में अगर जा पाए, तो हमें लगता है कि हम अपनी जो मानव जीवन है उसकी सार्थकता के साथ में जी पाएंगे। आप लोगों को सुनने का मौका मिला और आप लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट की अपनी बात, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और जी आपको हमेशा नमन कि आप इतना अच्छा आयोजन इतने अच्छे भावना के साथ में हमेशा करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।